Assalamualaikum everyone. Today our topic of discussion is the physical pharmacy. हम इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे आज, और उसमें हमारे पास है कोर्स डिस्कशन, और फिर हमने इसमें कोर्स डिस्कशन की जो हमने टाइप्स करनी है, और उस टाइप में हम जो पहली टाइप है इमल्शन उसको कवर करेंगे। ठीक है, इमल्शन का पूरा लॉन्ग आप इस वीडियो में देखेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। हमने आज पढ़ना है कोर्स डिस्पेशन एंड इट इज़ अ बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। हमारे जो फर्स्ट लेक्चर्स हैं उनमें हमने मोनो लिक्विड डोजेज फॉर्म पढ़ी थी, यानी कि एक ऐसी ये डोजेज होती है जिसमें हम सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ लिक्विड इज़ यूज्ड। But in this type of drug we use biphasic, means we use two types of liquid, two phase liquid, which can be soluble into each other and which can be insoluble into each other. They can be used. A coarse dispersion in which insoluble solute particles are dissolved in a liquid, usually as a water. तो कोर्स डिस्पेशन में क्या होता है, हम लोग हमेशा एक ऐसा ही सोल्यूट पार्टिकल्स हम पिकअप करते हैं जो विच आर इनसोलेबल इन आवर वाटरी मीडियम। ये ज़रूरी है कोर्स डिस्पेशन के प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए। हम उसके लिए ये प्रोसेस को करने के लिए हम हमेशा वही सोल्यूट के पार्टिकल्स लेते हैं जो इनसोलेबल होते हैं। अब हमने बात करनी है डिस्पर्स पार्टिकल्स की एंड डिस्पर्स मीडियम। व्हाट आर डिस्पर्स पार्टिकल? दे आर द सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, फॉर कोर्स डिस्पर्शन डिस्पर्स पार्टिकल रेंज फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब डिस्पर्स पार्टिकल्स का सेकेंड नेम क्या है? सोल्यूट पार्टिकल्स। मीन जो सोल्यूट पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर सॉल्वेंट एंड दे डिजोल्व इन आवर सॉल्वेंट, सो उनको हम डिस्पर्स पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। And what is dispersed medium? It is solvent, the liquid phase in which these solute particles are dissolved. So in our coarse dispersion, usually we take such solute particles or such dispersed particles which are insoluble in our solvent, or we say dispersed medium. So now we discuss the types of coarse dispersion. As we discussed that it has two types, emulsion and suspension. In emulsion, what will happen? The difference between the emulsion and suspension is only that in emulsion we use only two phasic liquid dosage form, but in a suspension we use a solid solute and the liquid solvent. So this is the major difference between our emulsion and suspension. ओके, अब इमल्शन की हम डेफिनेशन को देते हैं. इट इज़ अ बाईफेसिक सिस्टम इन विच वन लिक्विड इज dispersed particle which dissolve into another liquid which is dispersed medium, and this is process is proceed in the presence of an agent which is called as emulsifying agent. This emulsifying agent help to dissolve insoluble solute particles or the dispersed particle into the dispersed medium. So हमारा जो emulsion है, it has three types parts. First of all, it has dispersed phase, means solute particle phase. Then it has continuous phase, mean the solvent phase, and it has emulsifying agent. Now we discuss this example. It has vanishing cream gel, and it has various lotions and the ointment which we are using on our external use and the internal use also. They can be act as emulsers. तो ये एक छोटी सी डायग्राम बनाई है जिसमें मैंने दिखाया कि बीकर है, उसमें आपने वाटर फेस इमल्शन लिया हुआ है, ऊपर उसके ऑयल के पार्टिकल रेड कलर के ये ऑयल के पार्टिकल्स हैं जो वाटर की लेयर के ऊपर एक लेयरिंग कर रहे हैं. तो अगर हमने ऑयल एज अ सोल्यूट पार्टिकल लिया है, यानी डिस्पर्स फेज लिया, और वाटर आपने कंटिन्यूस फेज लिया, तो क्या होगा? इस सस्पेंशन को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ऑयल इन वाटर इमल्शन. अगर आपने वाटर एज अ सोल्यूट कलेक्ट किया हुआ और ऑयल ये आपका एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है, तो ये हमारी कैसी सस्पेंशन होगी? ये हमारी होगी वाटर इन ऑयल सस्पेंशन. Now we have to classify the types of emulsion. We have four types of emulsion. First of all, we have oil in water emulsion, we have water in oil emulsion, we have multiple emulsion, we have micro emulsion. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑयल इन वाटर emulsion. In this type of emulsion, oil act as a solute particle while the water act as a continuous phase. तो अब इस emulsion की एग्जांपल क्या है, हम ये देखते हैं.
इन इमल्शन की एग्जांपल में हमारे पास मिल्क आ जाता है, हमारे पास लोशन और वेरियस ऑइंटमेंट जो हम आउटसाइड द स्किन यूज़ करते हैं। लिंट्समेंट जो होते हैं ये ऑयली प्रिपरेशन है जो हम एक्सटर्नल यूज़ करते हैं स्किन के ऊपर, और ये यूजली पेन को रिलीफ देने में रोल प्ले करते हैं। सो माई जो सेकेंड टाइप है वो है वाटर इन ऑयल इमल्शन, जिसमें वाटर एज अ डिस्पर्स पार्टिकल होगा और ऑयल एक्ट एज अ डिस्पर्स मीडियम। एंड इसकी एग्जांपल में हमारे पास बटर और जो कोल्ड क्रीम जो कि हम अक्सर हम विंटर सीजन में यूज़ करते हैं, तो उनकी जो नेचर होती है दे आर प्रिपेयर ऑन द बेस ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन। तो ये इसकी एग्जांपल हो गई। और ज़्यादातर ये जो ऑयल इन वाटर इमल्शन दे आर ऑयली इन नेचर बिकॉज वाई, because in these type of emulsion our oil act as a disperse medium, so therefore in these emulsions we have greasy and oily nature। और इनकी ऑयली नेचर होने की वजह से ये इजीली रिमूव भी नहीं होते हैं। इनको अगर हमने रिमूव करना है कहीं भी किसी भी जगह से तो हमें सर्फेक्टेंट्स और किसी डिटर्जेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो अब हमने थर्ड टाइप इमल्शन की डिस्कस करनी है विच इज़ मल्टीपल इमल्शन। मल्टीपल इमल्शन का मीन किया है कि इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन इफ one liquid act as a dispersed medium, it is covered by another dispersed particle, and then this dispersed particle is dissolved into another liquid medium। मीन ये थ्री फेसिक सिस्टम आ जाता है इमल्शन का, और इसे हम डबल इमल्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम दो से ज़्यादा इट इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर फेसेस, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा ऑयल ड्रॉप, दिस ऑयल ड्रॉप इज़ कवर्ड बाय अ लिक्विड फेज विच इज़ वाटरी फेज, देन एंड अगेन लिक्विड ऑयली फेज इज़ कवर्ड बाय इट। सो ऑयली फेज इज़ आवर डिस्पर्स मीडियम, इट इज़ कवर्ड बाय अ लिक्विड फेज, देन अगेन अ लिक्विड ड्रॉपलेट। सो हमारे पास जो मल्टीपल इमल्शंस आ जाती हैं इनके दो टाइप्स हैं, ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन, वाटर इन ऑयल इमल्शन, ठीक है। सबसे पहले ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन, इसमें क्या होगा कि वाटर ऑयल के बाहर, ये फॉर एग्जांपल रेड कलर में मैंने ऑयल शो किया है, ऑयल के बाहर वाटर की लेयर है, फिर वाटर की लेयर के बाद दोबारा ऑयल की लेयर आ जाती है। इसी तरह वाटर इन ऑयल इमल्शन में क्या होगा, पहले वाटर का ड्रॉपलेट, उसके इर्द गिर्द ऑयल की लेयर, फिर अगेन द वाटर लेयर आ जाएगी। So we discuss the fourth type of emulsion which is micro emulsion। इसमें से फ़र्क ये है कि in this type of emulsion the dispersed particle, the size of dispersed particle is very small। normally ये 1 माइक्रोन के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग माइक्रो इमल्शन को स्टेबल इमल्शन कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं बिकॉज आप ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि वाई माइक्रो इमल्शंस आर स्टेबल। सो इसका आंसर ये है कि इफ़ वी आर यूजिंग स्मॉल पार्टिकल साइज of dispersed particle, then these small particle become easily dissolved in the presence of emulsifying agent into the dispersed medium, so they are uniformly distributed. Due to this uniformly distribution they make our emulsion more and more stable, and due to this stability or we can make a lot of stable drugs due to this emulsion and make our patient healthy। सो इसलिए माइक्रो इमल्शन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। जितना हमारा डिस्पर्स मीडियम का साइज़ कम होगा उतना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और सरफेस फ्री एनर्जी भी ज़्यादा होगी, सो उतना ही ज़्यादा हमारा इमल्शन जो है वो स्टेबल होगा और हमारे रिजल्ट्स, हमारे प्रोडक्ट एक अच्छा बनेगा, ठीक है। ये 4 हमने टाइप्स कर ली इमल्शन की। तो ये आपने लॉन्ग इसी तरह ही इसी पैटर्न पे लिखना है जिस पैटर्न पे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने इमल्शन अगर आपका आ जाता है या अगर आ जाता है कोर्स डिस्पर्शन पे, तो आपने इसी तरह कोर्स डिस्पर्शन लिखना है। कोर्स डिस्पर्स पार्टिकल क्या होते हैं, डिस्पर्स मीडियम क्या होता है, फिर you have to explain the types of our coarse dispersion, emulsion and suspension। Then if you are given the long on emulsion, then you have to write a definition, and then you will write that its types and its classification. 4 types you have to explain it, and explain it with example। you can add one or more examples into it, ठीक है। तो इस तरह आपने इनकी टाइप्स कर ली। अब हम आगे फॉरवर्ड मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आपने क्या देनी है।
अच्छा, इसमें हमने इमल्शन की थ्योरीज़ के बारे में भी बात करनी है, लेकिन आपने थ्योरीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप इसकी स्टेबिलिटी को अगर आप पहले नोट कर लेते हैं तो आपके लिए ये याद करना भी ईज़ी हो जाएगा और वो लिखना भी ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप पहले स्टेबिलिटी वाला पढ़ेंगे तो ही आपको इमल्शन की थ्योरीज़ समझ आएंगी। सो इसलिए पहले आप इमल्शन की स्टेबिलिटी को ही लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इमल्शन की स्टेबिलिटी क्या है, हमने पीछे भी देखा कि अगर हमारे पास इफ़ वी आर यूजिंग माइक्रो इमल्शन मीन्स स्मॉल साइज पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल, देन वी से दैट आवर इमल्शन इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। So if it means if we wanted to make a strong and we make a stable emulsion, we should use small particle size solute. So therefore what will happen means हमारे पास एक रीज़न आ गई है कि हम किस तरह एक स्टेबल इमल्शन को बना सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि अगर हम रियलिटी की बात करें, ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम स्मॉल पार्टिकल्स यूज़ करेंगे और हमेशा ही हमारा जो है इमल्शन स्टेबल ही आना चाहिए और उसको चाहे जितना मर्ज़ी टाइम गुजर जाए वो इमल्शन स्टेबल ही रहे, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं। अब क्या होता है कि रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे रीजंस आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं जिनकी वजह से हमारा जो हो जाता है डिस्टर्ब हो जाता है इमल्शन, उसमें इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अब हमने ये स्टडी करना है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ दीज इंस्टेबिलिटीज़ इन आवर इमल्शन एंड हाउ वी प्रिवेंट दैम, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी रीजंस है जिनकी वजह से इंस्टेबिलिटी हो रही है। सबसे पहले हमारे पास है क्रीमिंग, कोलिशंस, फ्लोकुलेशन, क्रैकिंग और ब्रेकिंग आप कह सकते हैं। देन वी हैव phase inversion and the chemical physical and chemical properties. So now we are discussing these instabilities factors one by one. First of all we have to discuss creaming. Creaming क्या है? In this process our oil droplets which are present in our emulsion, they form a layer either on its surface and either on the bottom, means they don't get uniformly distributed, they become form layer at the upper at the bottom. So if they are forming a layer at the upper part, then this movement is called as upward creaming, and if they are moving downward, then this process is called downward creaming. So ये भी इंस्टेबिलिटी की एक बहुत बड़ी रीज़न है, इसकी वजह से इमल्शन हमारा इंस्टेबल हो जाता है। Now the second reason of our emulsion is the formation of coalescence. अब coalescence क्या है? Coalescence ये है कि if we say that we are using emulsion, in emulsion all droplets are used. So what happened? These all droplets actually they have equal nature, means like dissolve like nature है इनकी. So what happened? These all droplets attract each other. Due to this attraction, these small oil droplets combine with each other and they form big droplet, and due to the formation of this big droplet coalescence occur. Various flocules are formed, so they make our emulsion unstable. Then the another reason of instability is breaking. What happened if we have unequal ratio between the emulsion oil and water phase, then what will happen? This oily and the watery phase become separated with each other, they form layering, so the emulsion breaks. So it is a reason of instability of emulsion. Now we move फ्लोक्चुएशन. फ्लोक्चुएशन क्या है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए इमल्शन को हम ऐसे ही रख देते हैं तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है। एंड इस वजह से उनका क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, एंड सरफेस एरिया कम होने की वजह से इंस्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। फेस इन्वर्जन में हमने क्या लिखना है कि बाज़ औक़ात इन फिक्स रेशियो की वजह से फेस इन्वर्जन हो जाती है। मीन वाटर इन ऑयल इमल्शन है तो वो ऑयल इन वाटर इमल्शन बन जाएगा और इस तरह चेंज हो जाता है। इमल्शन में हम लोगों ने पढ़ा है कि इमल्सिफाइंग एजेंट हम ऐड करते हैं,
So what happen sometimes if when we add a emulsifying agent, then what will happen, it changes its properties, mean it changes color, it changes pH, it changes various factors. So due to this changing, it change the physical and chemical properties of that emulsion, so it is very bad. Now we discuss the emulsifying agent. Emulsifying is a substance or chemical which is used to stabilize our emulsion. ठीक है, और इनकी बहुत सारी क्लासिफिकेशन है कि हम इनको कहाँ कहाँ से लेते हैं। हम इसको सबसे पहले हमने इसको लेना है नेचुरल सोर्स से। तो नेचुरल सोर्स से वेजिटेबल सोर्स भी आ जाता है, एनिमल सोर्स भी। वेजिटेबल सोर्स में एक्टिन, एग्निटार, एगर, पेक्टिन और हमारे पास स्टार्च आ जाता है। एनिमल सोर्स में वुल फैट आ जाता है, हमारे पास एग यॉल्क आ जाता है एंड वी हैव जिलेटिन। ठीक है, फिर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में मिथाइल सेलुलोज आ जाता है। फिर सिंथेटिक में एनिक, कैटायनिक और नॉन एनिक है। कैटायनिक में हमारे पास सोडियम लोरेट सल्फेट है और कैटायनिक में बेंजो अल्कोनियम क्लोराइड है और नॉन एनिक में ग्लिसरॉल है। इनऑर्गेनिक में मेशो मैग्नीशिया और MgO है और अल्कोहल में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल और हमारे पास आ जाता है कार्बोवैक्सिस। ठीक है, नाउ यू कैन डिस्कस द थ्योरीज ऑफ आवर इमल्शन। ठीक है, अगर आप डिस्कस करेंगे तो वो आपको ज़्यादा चीज़ समझ आएगा। फर्स्ट जो थ्योरी है वो हमारे पास है मोनो एब्जॉर्बेंट थ्योरी, से हम अब्जॉर्प्शन थ्योरी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो एग्रीगेट कर जाते हैं और जो सर्फेक्टेंट या हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं वो उसके गिर्द एक मोनोलेयर फॉर्म कर देता है। तो इसे हम कहते हैं मोनो। इसमें हम क्या, जब सर्फेक्टेंट जाते हैं तो सर्फेक्टेंट का एक पोलर हेड होता है, एक नॉन पोलर होता है। पोलर हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड व्हाइल द नॉन पोलर इज हाइड्रोफोबिक। सो ये अपनी नेचर के साथ साथ ऑयल और वाटर के साथ इंटरेक्ट करके उनको आपस में सोलेबल बना देते हैं और उसके इर्द गिर्द एक मोनोलेयर बना देते हैं। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड थ्योरी विच इज़ अबाउट मल्टी लेयर एब्जॉर्बेंट थ्योरी। इसमें क्या होता है कि वही सर्फेक्टेंट जो है वो डिस्पर्स पार्टिकल के गिर्द मल्टी लेयर्स बना देता है। सो इस मल्टी लेयर फॉर्मेशन की वजह से इसे दिस थ्योरी का नाम दिया। फिर हमारे पास तीसरी थ्योरी है सोल्यूट पार्टिकल एब्जॉर्बेंट थ्योरी। इसमें क्या होता है कि हम एक ऐसा सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं जो कि सॉलिड इन नेचर होता है। तो इसकी यूज़ करने की वजह क्या है कि इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है और सेडिमेंटेशन रेट कम हो जाता है। सो ये प्रिवेंट करता है कोलिशंस को बनने से और हमारे पास क्रैकिंग होने से। तो ये एक अच्छा है। इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं कोलाइडल क्ले की। फिर विस्कोसिटी थ्योरी क्या है कि हमने विस्कोसिटी बढ़ानी है तो अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन ये थ्योरी गलत हो गई थी, रिजेक्टेड। ये जो आगे हम लोग थ्योरीज पढ़ेंगे ये रिजेक्टेड थ्योरीज है। तो इस थ्योरी ने कहा कि विस्कोसिटी इंक्रीज़ करने से अनस्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, लेकिन ये रियल नहीं है क्योंकि हम मिल्क में देखते हैं कि उनकी विस्कोसिटी जो है हाई होती है लेकिन फिर भी वो स्टेबल है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम जो दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग क्रीम की ले लेते हैं, तो क्रीम की विस्कोसिटी हाई है लेकिन वो फिर भी स्टेबल है। सो इस तरह ये जो थ्योरी थी रिजेक्ट हो गई। इसी तरह फिशर हमारे पास थ्योरी आ जाती है। उसने ये कहा था कि ऑयल इन वाटर इमल्शन में ऑयल जो है वो हमारे पास कम्प्लेक्स हाइड्रेट बना देता है एमल्सिफाइंग एजेंट की प्रेजेंस में, और इसी तरह वाटर इन ऑयल इमल्शन में वाटर जो है कम्प्लेक्स हाइड्रेट बना देता है एमल्सिफाइंग एजेंट की उसमें। सो इस थ्योरी का ड्रॉबैक ये था कि इसने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया था। So now we move on to the next theories which is about ओरिएंटेड वेज थ्योरी। ओरिएंटेड वेज थ्योरी में आप लोगों ने क्या कहना है कि नेचर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट डिपेंड करता है कि कौन सा इमल्शन हम यूज़ करें। अगर वाटर इन ऑयल इमल्शन है तो वाटर के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हाइड्रोफोबिक वाटर। पहले